हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता एज इट इज के पहले अध्याय के श्लोक नंबर 37, 38 और 39 का अध्ययन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभव्ययुत्। यदि अपि भी एतेन ये नहीं पश्यन्ति देखते हैं लोभ से उपहत अभिभूत चेतसः चित्त वाले कुलक्षः कुलनाश कृतम किया हुआ दोषम दोष को मित्रद्रोहे मित्रों से विरोध करने में च भी पातकम पाप को कथम क्यों न नहीं ज्ञेयम जानना चाहिए अस्मा भी हमारे द्वारा पापात पापों से अस्मात् इन निवर्तितुम बंद करने के लिए कुलक्षय वंश का नाश कृतम हो जाने पर दोषम अपराध प्रपश्यदि देखने वालों के द्वारा जनार्दन हे जनार्दन यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने से अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। In these shloks, Arjun is expressing his deep concern and responsibility for following the family traditions. He is telling Krishna, O Janardan, maintainer of all living beings, although Duryodhan and his supporters are overtaken by greed of capturing others' kingdom by unfair means, but we cannot do the same like them. Arjun is a Kshatriya and has full knowledge of the Kshatriya Dharma, that the Atatayins or aggressors should be punished, and there is no sin in killing the Atatayins. But here he is surrounded by a more grave problem. He is thinking that if all the brave warriors and the soldiers of Duryodhan's side will be killed, then who will offer the Shraddha offerings to the forefathers? It is stated in the Vedas that if the oblation or Shraddha is not performed, then the forefathers who are in the Pitralok are dissatisfied. Since Arjun has the full knowledge of the importance and the consequences of not offering Shraddha, so he is very disturbed by the thought that if all the brave warriors and soldiers
of Duryodhan's side will be killed by Arjun, so all the sin for not offering Shraddh will be on Arjun. And Arjun is well aware of the responsibility of killing the entire family dynasty. Arjun doesn't want to take the blame on himself. We are all indebted to the demigods like sun, moon, Indra, etc. The sun god gives us sunlight. The moon god's rays fills the juices in all the fruits and vegetables. Indra god gives us rain. Then we are indebted to all the saints because of whom we have the scriptures like Ramayana, Veda, Upanishads, Mahabharata and Bhagavad Gita. Then we are indebted to our forefathers as well. It is because of them only we have got a human body. So we need to do Shraddh or pay our tribute, otherwise we will be punished. Like if we do not pay the taxes to our government, then we are labeled as thieves and surely we will be punished. But if we pay our income tax regularly, then we don't need to pay taxes separately to the health department, education department, irrigation department, etc. And we can continue to live happily with respect. The same rule is applicable for our forefathers as well. Either we become Krishna devotee and pay our respect to Krishna as he is the maintainer of all the living beings, or we need to pay respect to all the demigods, rishis and our forefathers. In Bhagavad Gita, chapter 18, shlok number 66, it is stated, Sarvadharman parityajye mamekam sharanam vraj, aham tvam sarv papebhyo mokshishyami. अर्थात कृष्ण कह रहे हैं सभी धर्मों का त्याग करके मुझ अकेले की शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश कर दूंगा, डरना नहीं। कृष्ण कह रहे हैं सभी देवी देवताओं का सम्मान कीजिए, लेकिन मुझे नमस्कार कीजिए और मेरे शरणागत में आ जाइए, मेरी शरणागति स्वीकार कीजिए और मैं आपको सभी आपके जाने अनजाने जो भी आपसे पाप हुआ है मैं आपको क्षमा कर दूंगा। In Kalyug, it's very difficult to do the religious offerings as nothing is pure and no one really knows how to do all these obligations in the right manner. So the simplest way to offer respect to all the demigods, saints and forefathers is to worship Krishna, chant the Hare Krishna Mahamantra, read and listen to Bhagavad Gita and Bhagavatam, and be happy in our life. By now, we have clearly understood the reason of Arjun's mental conflict and tension. Arjun is very sensitive and cautious for one more reason, that Krishna is his charioteer, and everyone knows that Arjun and Krishna are the greatest friends, and Arjun is Krishna's devotee also. So the responsibility on Krishna is much greater than any other ordinary person. The responsibility on Arjun is much greater than any other ordinary person. When Duryodhan does some impious activity, then people are not surprised. But if Arjun will do the same, then everyone will say
that Arjun, being in Krishna's company, how can he do something like this? So Arjun has the responsibility of being Krishna's friend, so that no one may point a finger at Krishna. यही तो जिम्मेदारी होती है एक भक्त की। उसके आचरण से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे भगवान के ऊपर कोई बात आए। अर्जुन भली भांति जानता है कि समाज के कल्याण के लिए परिवार का सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है, और परिवार के कल्याण के लिए परिवार में बड़ों का होना बहुत आवश्यक है। और यदि सभी बड़े युद्ध में मारे जाएंगे तो परिवार का मार्गदर्शन कौन करेगा? और परिवार में नैतिक शिक्षा के अभाव से परिवार बिखर जाएगा, क्योंकि प्रत्येक परिवार में बड़े ही छोटों को नैतिक शिक्षा का ज्ञान देते हैं। अर्जुन एक अनुशासनहीन समाज की कल्पना करके कांप उठता है और श्री कृष्ण से कहता है कि हे जनार्दन, कुल के नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह परिवार की अगली पीढ़ी अधर्मी हो जाएगी। अतः किसी भी कारण परिवार के वयोवृद्ध का वध होना नहीं चाहिए। इस श्लोक में हमने ये सीखा कि हमें भी अर्जुन की तरह बहुत सोच समझकर तथा कृष्ण से परामर्श लेकर ही प्रत्येक कार्य करना चाहिए, न कि दुर्योधन की तरह धन और राज्य के लालच में आकर कुल का नाश करना चाहिए। भागवतम में यह अंकित है, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास। इसका अर्थ है कि हमारे अंदर जो आत्मा है, हमारे शरीर में, यह कृष्ण का दास है, यह कृष्ण का अंश है। इस प्रकार हमें कृष्ण के हमेशा सेवा करनी चाहिए, सदा कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहिए, तभी हम हमेशा के लिए खुश रह सकेंगे। जिस प्रकार से हमारे शरीर के प्रत्येक अंग, जैसे हाथ, पैर या दूसरे अंग लगातार शरीर की सेवा में लगे रहते हैं, इस प्रकार शरीर भी खुश रहता है और वह अंग भी खुश रहता है। लेकिन अगर किसी परिस्थिति में कोई अंग, जैसे हाथ, पैर या कोई दूसरा अंग हमारा चोट लग जाए उसमें, या उसमें लकवा हो जाए, या वह बीमार हो जाए, तो वह शरीर की सेवा नहीं कर पाता है। इस प्रकार से वह अंग भी दुखी रहता है और हमारा शरीर भी दुखी रहता है। इसलिए हमारा नित्य स्वरूप है कि हम सदा कृष्ण की सेवा करें। कई लोगों का ये मानना होता है कि दूसरे लोगों को भोजन कराना या वस्त्र देना या पैसे देना ये सबसे बड़ी सेवा है, लेकिन इससे भी बड़ी सेवा है सभी मनुष्यों को कृष्ण के विषय में प्रवचन देना, कृष्ण के विषय में जानकारी देना, और हमारा और कृष्ण का क्या नित्य संबंध है, चिर संबंध है कि हमारी आत्मा कृष्ण का अंश है। इस विषय में जब हम प्रत्येक मनुष्य को ज्ञान देते हैं, ये सर्वोच्च ज्ञान है। इससे हम भी प्रसन्न रहेंगे और भगवान भी प्रसन्न रहेंगे। आज मैं यहाँ इस श्लोक को विराम देती हूँ और अब अगले श्लोक में देखेंगे कि अर्जुन की क्या मनस्थिति है। इस श्लोक में श्राद्ध का जो महत्व बताया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। इसके महत्व को समझाने के लिए भगवान राम ने भी अपने पीढ़ियों का श्राद्ध किया था प्रयागराज में, और भगवान कृष्ण ने युद्ध के बाद, महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के साथ और अपनी बुआ कुंती के साथ और द्रौपदी के साथ जितने भी योद्धा मारे गए थे
उनके लिए श्राद्ध किया था। इसलिए अर्जुन बहुत चिंतित है कि यदि सारे योद्धा मारे जाएंगे तो हमारे पूर्वजों को कौन श्राद्ध अर्पित करेगा, और इस प्रकार से अगर हमारे पूर्वज दुखी रहेंगे तो हम कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए प्रोत्साहन भी है और मेरा मार्गदर्शन भी करते हैं। हरे कृष्ण।